Dear students, today we will discuss some numericals based on calculus, basic concept of calculus, differentiation and integration. The first one is displacement is given by x equal to 2 plus 4t plus 5t square. Find the value of instantaneous acceleration where x is in meter and t is in second. The given relation is x equal to 2 plus 4t plus 5t square. Here given relation is in x and t. ये x और t का रिलेशन है, मतलब ये पोजीशन और टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई इक्वेशन है। यहाँ से अपने को एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन फाइंड करना है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए हम पीछे फार्मूला ये जानते हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लिखते हैं dx बाई dt। ऐसे ही जब एक्सीलरेशन को लिखना होता है तो लिखते हैं dB by dt, but here b is in terms of x and therefore d by dt of b means dx by dt. Now a becomes equal to d2x by dt square. इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर। मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इस x को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू t, और यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो Question 1, differentiating 1, we have dx by dt. dx by dt represents change in position with respect to time, and change in position with respect to time or change in displacement with respect to time gives velocity equal to d by dt of 2 plus 4t plus 5t square. Now dx by dt equal to, अब एक फार्मूला इसे लर्न करना होगा, d by dx x to the power n equal to n x to the power n minus 1। यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है 2, और हम d by dt means we are going to find the change in the x with respect to t, और ये जो 2 है it is a constant term, and in a constant term there is no change with time, and therefore the derivative of 2 with respect to t will be 0. Again plus d by dt of 4t plus d by dt of 5t square. Here dx by dt equal to फार्मूला d by dt, फिर यही फार्मूला, जो पावर है यहाँ
x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ x पावर n है, यहाँ t के टर्म में है तो यहाँ t टू द पावर 1 है। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो जो पावर है उसमें एक प्लस होना है, ठीक, सॉरी उसमें एक माइनस होना है और पावर मल्टीप्लिकेशन में आनी, तो 4 ऑलरेडी मल्टीप्लायर है, t टू द पावर 1 है तो ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस यहां मल्टीप्लायर 5 है, एज सच आ गया 5, यहाँ टी टू द पावर 2 है तो ये टी टू द पावर माने n की जगह ये भी मल्टीप्लाई होगा 2, और जो भी पावर है वो n माइनस 1 एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा t2 माइनस 1, हियर dx by dt equal to 4 t to the power 0 means 1, 4 plus 5 into 2 10 t to the power 2 minus 1 t to the power 1 20. Now equation becomes equal to dx by dt equal to 4 plus 10t. Question 2. This is the instantaneous velocity. But question is find the instantaneous acceleration. Therefore, differentiating again 2 with respect to time, we have, इसको डिफरेंशिएट करें, ये आएगा a इक्वल टू dv बाई dt, b को डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt, और उसी को यहाँ लिखो तो ये हो जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर, क्योंकि इसको अब सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट करना है तो d2x बाई dt स्क्वायर हो जाएगा, यही एक्सीलरेशन होगा, या इसी को dv बाई dt भी लिख सकते हो, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे फिर वही कॉन्सेप्ट d बाई dt 4 प्लस 10t, नाउ a इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 4 कांस्टेंट 0 प्लस 10 t 10 एज सच t टू द पावर 1 मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 1 10 t टू द पावर 1 माइनस 1 t टू द पावर 0, आंसर d2x by dt square equal to 10 meter per second square. This is the required answer of given question. Dear student, second one is acceleration of a particle in meter per second square is given by a equal to 3t square plus 2t plus 2, where t is in second. If the particle starts with a velocity v equal to 2 meter per second, v equal to 2 meter per second at t equal to 0, then find the velocity at the end of 2 seconds. Velocity at t equal to 2 seconds. Question is acceleration and time relation is given by this equation, a equal to 3t square plus 2t plus 2 and initial velocity, that is velocity at t equal to 0, 2 meter per second. Then we have to find the velocity at the end of 2 seconds.
For this, we have to write acceleration in terms of velocity. And it will be equal to dv by dt equal to 3t square plus 2t plus 2. Now dv equal to 3t square plus 2t plus 2 dt. This is equation 1. Now इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, यहाँ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी. वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू 3t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस 2 dt. इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमने किया हुआ था, और वहाँ एक फार्मूला ये था x to the power n dx इक्वल टू x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, but with a restriction n not equal to -1. इसी फेमस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे. इट विल बी इक्वल टू v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv v इंटीग्रेशन ऑफ x dx x इंटीग्रेशन ऑफ dt t. ऐसा इसलिए कि यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं कि that it is b to the power 0. तो b to the power 0 dv, इस फार्मूले को यहाँ यूज करो तो b to the power 0 है तो 0 plus 1 अपॉन 0 plus 1, तो b to the power 1 अपॉन 1 प्लस c, तो c आगे हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा. ये b हो गया इक्वल टू 3 t to the power जो भी है उसमें एक प्लस होना है, 2 है, 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 plus 2 t to the power 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 plus 2. यहाँ भी t to the power 0 है तो क्या आ जाएगा t. ये हो गया b इक्वल टू 3/3 t क्यूब प्लस 2/2 t स्क्वायर प्लस 2t. ये जो रिलेशन आएगा ये हो जाएगा b इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t. बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है, we have to find out the velocity at the end of 2 seconds. Here this equation 2 gives the velocity in terms of time t plus c constant of integration. क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं जिसमें लिमिट गिवन है तो c नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा. लेकिन अगर लिमिट गिवन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट भी ऐड होगा. और फिर इस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को इवेल्युएट करते हैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके. वो बाउंड्री कंडीशन इस पर्टिकुलर केस में दे रखा है और इसने कहा है कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. तो ऑन पुटिंग t इक्वल टू 0 in equation 2 and b equal to 2, we have to evaluate constant c. b 2 and t equal to 0, t cube 0 0 0 0 plus 0 plus 0 plus c, and therefore c equal to 2. Now we are directed to derive the velocity at
the end of 2 seconds. Therefore, at t equal to 2 second, at t equal to 2 second, इस इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करें तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड मिल जाएगी, या वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड. तो v इक्वल टू t टू द पावर 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस c की वैल्यू यहाँ इवेल्युएट किया, ये 2. नाउ v इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, v equal to 18 meter per second. This is the required answer.